Hello everyone, good morning. Today we are going to discuss the topic Satellite, Class 11th Physics, Chapter 8 Gravitation. See these two pictures carefully. Something is revolving around the planets. These revolving bodies are called satellites of that particular planet. Satellite. The satellite is a body that constantly revolves around another bigger body. जब कोई बॉडी किसी बिगर बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करती है, दैट रिवॉल्विंग बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट ऑफ दैट बिगर बॉडी. Satellite is a body that revolves around a planet. But here particularly जो bodies planets के around revolve करती हैं, those bodies are called satellites. For example, moon is a satellite of the earth. All the planets are the satellites of the sun because planets are also revolving around the sun. Satellite is broadly categorized into two types: artificial satellites and natural satellites. Artificial satellites are also called man made satellites. Man made satellites are further divided into two parts: geostationary satellites and polar satellites. Here we will discuss in detail these two types of satellites, geostationary and polar. Satellites can be categorized as natural satellites or man made satellites. The moon, the planets, and comets are examples of natural satellites because they are revolving around some another bigger bodies. For example, man made satellites Sputnik 1, INSAT 1, 2, and 3, which are communication satellites. These are the man made satellites, and there are many in numbers. Natural satellite of earth, that is moon, which we see in the sky at night. See this picture carefully. Moon is revolving around the earth. This is another picture. See carefully. Moon is revolving around the earth. The moon rotates at the same rate as it spins. Both take 27.3 days to complete one cycle. Now question is, do we always see one side of the moon? See carefully in this revolution. Only one particular side is facing the earth, red part. Yes, one side of the moon always faces earth because of what we call synchronous rotation. Moon rotates or spins on its axis in the same time it takes to orbit earth. जितना टाइम मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में लगाता है, उतना ही टाइम अर्थ जो है रोटेट करने में लगाता है. मून अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है, एंड दैट इज 27.3 days. For that reason, our moon always has one side facing earth, which we call moon's near side, because this is towards the earth.
See this picture carefully. In the center, this is the earth of radius capital R, and one tower is there on the earth. Now we are going to discuss principle of launching a satellite. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स, उनको कैसे लॉन्च किया जाता है, हाउ दीज सैटेलाइट्स आर बीइंग लॉन्च्ड, हाउ वी कैन लॉन्च दीज सैटेलाइट्स. Suppose a body is projected horizontally from the top of a high tower. इस हाई टावर के ऊपर से किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जा रहा है. The body will describe a parabolic path under the influence of gravity. We know that we have studied in previous chapters, when we throw any body in horizontal direction, it follow the parabolic path under the influence of gravity. Depending upon its initial velocity, it may strike the earth at the point marked 1 or at the point marked 2 in the figure. हम इस पिक्चर में देखेंगे केयरफुली. टावर के ऊपर से हमने किसी बॉडी को थ्रो किया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. यदि हम कम स्पीड से फेंकेंगे तो बॉडी जो है वो पॉइंट 1 पे फॉल करेगी. यदि थोड़ी ज़्यादा स्पीड से हम फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली तो बॉडी सेकंड पॉइंट पे फॉल कर सकती है. यदि हम और ज़्यादा स्पीड से फेंकते हैं सो बॉडी विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ and will become the satellite of earth. जिस स्पीड से हम बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं एंड बॉडी स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दैट पर्टिकुलर स्पीड इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड, और वी कैन से ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट. द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल in the second case is larger than that in the first case. यदि हम इस पिक्चर की बात करें तो there are 2 points 1 and 2. तो सेकेंड केस में जो रेंज है वो ज्यादा है, फर्स्ट केस में रेंज कम है. In fact, in the second case, the projectile almost reaches the opposite side of the earth. इस डायग्राम में जो सेकेंड पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली अपोजिट टू द टावर. ठीक है, टावर के रिस्पेक्ट में अर्थ के अपोजिट साइड में है. When a body is thrown horizontally from a certain height with a certain velocity, that velocity is called orbital velocity, so that it will not fall on the surface of earth and start orbiting around the earth as shown in figure, then that body will become the satellite of earth and that particular velocity is called orbital velocity. This is the प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट. सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यहां पे मेनली 2 कंसेप्ट्स हैं. एक पर्टिकुलर डिजायर्ड हाइट पर लेकर जाना और उस हाइट से उस बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करना विद ए पर्टिकुलर वेलोसिटी सो दैट बॉडी स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड विल बिकम द सैटेलाइट ऑफ अर्थ. द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट फॉर ऑर्बिटल मोशन. यहां पे क्या है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल वर्क एज द सेंट्रीपिटल फोर्स सो दैट दैट बॉडी विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. See this picture carefully. There are 3 circles, red, yellow and green. In the red circle it is written low earth orbit. In yellow it is polar and in green geostationary. We will discuss here polar and geostationary. Geostationary satellites. See this picture carefully. This is a satellite which is revolving around the earth. In this picture, satellite is facing a particular part of earth.
it is shown with this white patch. Geostationary satellites. A satellite whose time period is 24 hours and is revolving in an orbit concentric and coplanar with the equatorial plane of the earth is called geostationary or stationary or synchronous satellite. ठीक है, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं इसकी डेफिनेशन इसके वर्ड नेम में ही छुपी हुई है. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसी सैटेलाइट, जियो मीन्स अर्थ, जो अर्थ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से देखने से हमें स्टेशनरी अपीयर होती है. ठीक है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स होना चाहिए और वो एक ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करनी चाहिए कि दैट इज कंसेंट्रिक विद द अर्थ and its plane must be coplanar with the equatorial plane of the earth. That satellite will be called as geostationary satellite. It will appear stationary from the surface of earth. The orbit of the stationary satellite is called parking orbit. तो वहां से हमें ऐसे लग रहा है कि जो सैटेलाइट है पर्टिकुलर जगह पे पार्क कर दी है और वो हमें हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट से बिल्कुल सामने दिखाई देगी. नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. किसी सैटेलाइट को आपने जियो स्टेशनरी बनाना है तो हमें क्या क्या जो कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हैं उसको जियो स्टेशनरी बनाने के लिए. तो फर्स्ट पॉइंट, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज 24 आवर्स. उसका जो एक रिवॉल्यूशन है वो 24 आवर्स में एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ अर्थ 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए. सेकेंड, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट. उसका जो रिवॉल्यूशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए, सेम एज दैट ऑफ अर्थ. तो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है ऑन इट्स एक्सिस वैसे वैसे वो सैटेलाइट पैरेलल रिवॉल्व करनी चाहिए सो दैट कि दोनों का एक राउंड सेम टाइम में कंप्लीट हो. इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कंसेंट्रिक एंड कोप्लैनर विद द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ. जो अर्थ का जो इक्वेटर है उसके बिल्कुल पैरेलल, कंसेंट्रिक टू अर्थ, दैट सैटेलाइट should revolve. It should be at about 35,800 or approximately we can say 36,000 किलोमीटर from the surface of earth. उसकी जो हाइट है अर्थ के सरफेस से 35,800 किलोमीटर होनी चाहिए. सो राउंड फिगर वी कैन से 36,000 किलोमीटर. और यदि हम अर्थ के सेंटर से बात करें तो अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट. सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज 42,400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली. दिस शुड बी द डिस्टेंस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज 24 आवर्स, एंगुलर वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ अर्थ वेस्ट टू ईस्ट, and it should be coplanar and concentric to the equatorial plane of the earth, and its height from the surface of earth should be approximately 36,000 kilometer, and from the center of earth it should be 42,400 kilometer. A satellite revolving in a stable orbit does not require any energy from an external source. उस सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स से कोई एनर्जी नहीं चाहिए. वो ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू देयर मासेस. दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विल हेल्प दैट पर्टिकुलर बॉडी टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. नो एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड. Acceleration due to gravity is used up in providing centripetal acceleration to the satellite.
Hence, G inside the satellite is 0. Its orbital velocity is 7.92 kilometer per second, which we will calculate in the another video. Orbital velocity of geostationary satellites. The orbit of satellite may be elliptical or circular. तो जो सैटेलाइट का ऑर्बिट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वी विल डिस्कस ए लिटल लेटर. इट मे बी एलिप्टिकल, इट मे बी सर्कुलर. यूजेस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. तो ये सबसे पहले कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होती हैं. रेडियो में, टीवी में और मोबाइल कम्युनिकेशन में इन सैटेलाइट्स का यूज होता है. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स फॉर वेदर फोरकास्टिंग. जैसे हम टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि वेदर के बारे में हमें पता चल जाता है पहले ही, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं वो हेल्प करती हैं टू एस्टिमेट द वेदर. नेक्स्ट, टू स्टडी अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के अपर रीजन को स्टडी करने में भी ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हेल्प करती हैं. तो दीज आर द यूजेस: कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग and study upper region of atmosphere. Next one, to study solar radiations. सन से आने वाली रेडिएशंस की स्टडी भी हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की हेल्प से कर सकते हैं. टू स्टडी कॉस्मिक रेज टू कैरी आउट रिसर्च वर्क. रिसर्च वर्क में भी हम इन सैटेलाइट्स का यूज कर सकते हैं टू गैदर सम मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनीथिंग. कॉस्मिक रेज के बारे में हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं. With the help of these satellites, scientists are always working over it. To study meteorites. Meteorites or other heavenly bodies which are floating in space. We are studying those bodies with the help of these satellites. Used in GPS, Global Positioning System, which we are using too much nowadays. Okay? ये जीपीएस सिस्टम जो है, जिससे हम किसी भी बॉडी की, किसी भी चीज़ का हम अर्थ के सरफेस पे उसकी पोजीशन का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं. जीपीएस सिस्टम, ओके, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. इसमें भी हम इन सैटेलाइट्स का, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं. वी आर यूजिंग, सो दिस इज द जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. दीज आर द सैटेलाइट्स which are working in this system in this way. Next, polar satellites. See this picture carefully. There are two circles. One is parallel to the equator, that is of geostationary satellites, and their orbit we can say, and one another is which is going over the north and south pole of the earth, that is polar orbit. So now we are going to discuss the polar satellites. Polar satellites क्या होती हैं? The satellite which revolves in polar orbit around the earth is called polar satellite. It passes over the north and south pole of the earth at about 200 to 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. तो अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच में कहीं भी ये सैटेलाइट्स हो सकती हैं एट डिफरेंट हाइट्स. इट पासेस ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ एंड कैन स्कैन कंप्लीट अर्थ. अर्थ को कंप्लीटली स्कैन कर सकती हैं ये सैटेलाइट्स. यूजेस ऑफ पोलर सैटेलाइट्स: टू रिकॉर्ड लैंड एंड सी टेम्परेचर. लैंड का और सी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इन सैटेलाइट्स का यूज कर सकते हैं. टू टेक पिक्चर्स ऑफ क्लाउड्स एंड स्टडी क्लाइमेटिक चेंजेस. क्लाइमेटिक चेंज को स्टडी करते हैं, क्लाउड्स की पिक्चर हम इन सैटेलाइट्स की हेल्प से लेते हैं. फॉर वेदर फोरकास्टिंग. वेदर फोरकास्टिंग में हम लगभग सभी सैटेलाइट्स का यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली पोलर सैटेलाइट्स प्रोवाइड बेटर इंफॉर्मेशन बिकॉज दे आर मच क्लोजर टू अर्थ एज कंपेयर टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. इनकी जो हाइट है वो 200 टू 1000 किलोमीटर है और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो हैं अबाउट 36,000 किलोमीटर पे.
तो पोलर सैटेलाइट्स प्रोवाइड बेटर इंफॉर्मेशन टू स्टडी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सैटेलाइट्स। इट वॉज ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट विच गेव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग होल इन ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर में होल की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी वो ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट ने प्रोवाइड की थी। फॉर मिलिट्री पर्पस भी हम इसका यूज करते हैं, स्पाइंग पर्पसेस के लिए किसी भी चीज को ट्रैक कर सकते हैं, एनिमी कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन पे है, बॉर्डर पे क्या चल रहा है, ये सारी चीजें भी हम पोलर सैटेलाइट्स की हेल्प से हम उसके ऊपर नजर रख सकते हैं, देख सकते हैं, स्पाइंग वर्क कर सकते हैं। फॉर रिमोट सेंसिंग, जिन एरियाज में जाना बहुत डिफिकल्ट है उस पर्टिकुलर एरिया की स्टडी के लिए भी हम इन सैटेलाइट्स का यूज कर सकते हैं, पोलर सैटेलाइट्स का। सैटेलाइट्स मस्ट हैव डिफरेंट ऑर्बिट्स, व्हाई? ठीक है, सारी की बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं डिफरेंट कंट्रीज ने, तो ये इंडिया बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। सो उन सभी सैटेलाइट्स का जो ऑर्बिट होता है वो नियरली डिफरेंट होता है। तो व्हाट्स द रीज़न? ठीक है, सभी का नहीं, वो डिपेंड करता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स आर इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, बिकॉज यदि आप सभी सैटेलाइट्स को एक ही ऑर्बिट में लॉन्च कर देंगे तो वो आपस में कोलाइड कर जाएंगी एंड दे मे बी डैमेज्ड। नाउ शेप ऑफ ऑर्बिट इन ए सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसकी शेप कैसी होगी वो किस पे डिपेंड करता है? द शेप ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिट की शेप सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट वन, इफ वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल देन लेसर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, यदि सैटेलाइट की वेलोसिटी जो है वो उसकी ऑर्बिटल स्पीड से कम है, सो सैटेलाइट फॉल्स बैक टू अर्थ फॉलोइंग ए स्पाइरल पाथ। तो वो सैटेलाइट जो है जिसकी स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से कम है तो वो सैटेलाइट स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए वो अर्थ के ऊपर फॉल कर जाएगी, अर्थ पे गिर जाएगी। इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू इट्स ऑर्बिटल स्पीड देन सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगी इफ इट्स स्पीड इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड, and if its speed is greater than orbital speed and lesser than the escape speed। escape speed क्या होती है वो हम किसी डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस स्पीड से जब आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो बॉडी जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाती है, दैट स्पीड इज कॉल्ड एस्केप स्पीड और वी कैन से एस्केप वेलोसिटी। तो यदि सैटेलाइट की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है और ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है देन सैटेलाइट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो सैटेलाइट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगी। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू इट्स एस्केप वेलोसिटी देन सैटेलाइट विल एस्केप अवे फॉलोइंग ए पैराबोलिक पाथ। सो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए सैटेलाइट ग्रेविटी से बाहर चली जाएगी, एस्केप हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ इट्स स्पीड इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, जो उसकी एस्केप मिनिमम एस्केप वेलोसिटी जो है यदि उसकी स्पीड उससे भी ज्यादा है देन सैटेलाइट विल एस्केप अवे फॉलोइंग ए हाइपरबोलिक पाथ, देन इट विल फॉलो द हाइपरबोलिक पाथ। ओके, these are the different speeds which decides the shape of orbit of the satellite. This is all about the satellites. So mainly you have to focus over the geostationary satellites and their uses. Thank you. Have a nice day.